بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب طلبہ و طالبات اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی جماعت پنجم، ہم پڑھ رہے تھے باب نمبر 5 جغرافیہ، اور آج کا ہمارا عنوان ہے معروضی۔ ہم نے معروضی حل کرنی ہے، لیکن معروضی حل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم اپنے سابقہ سبق کی مکمل طور پر دہرائی کریں گے۔ جی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، زمین کی پیمائش کے لیے زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک لمبائی میں اور ایک چوڑائی میں، تاکہ زمین کی پیمائش آسانی سے کی جا سکے۔ سب سے پہلے زمین کے مرکز سینٹر میں، درمیان میں، زمین کے مرکز میں ایک خط کھینچا گیا۔ یہ زمین ہے، زمین کے درمیان میں ایک خط کھینچا گیا جس کو خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا یہ زمین کو چوڑائی میں اس طرح سے عرض میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ زمین کو دو حصوں میں عرض میں یعنی چوڑائی میں یہ خط استوا دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح سے زمین کو لمبائی میں بھی تقسیم کیا گیا۔ اس خط کی مدد سے یہ خط لمبائی میں زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس خط کو کہتے ہیں نصف النہار۔ طول میں یعنی کہ لمبائی میں جو خط زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اسے کہتے ہیں نصف النہار، اور جو خط عرض میں زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اسے کہتے ہیں خط استوا۔ یہ فرضی خطوط ہیں، خط استوا اور نصف النہار، یہ دونوں فرضی خطوط ہیں جو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ خط استوا زمین کے مرکز کے گرد کھینچا گیا ایک فرضی خط ہے جو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اوپر والے حصے کو کہتے ہیں شمالی نصف کرہ، اور نیچے والے حصے کو کہتے ہیں جنوبی نصف کرہ۔ خط استوا کے اوپر جو سمت ہے وہ ہے شمال کی، تو خط استوا سے یہاں تک یہ ہے شمالی نصف کرہ، اور جنوب سے خط استوا تک یہ ہے جنوبی نصف کرہ۔ نصف ہوتا ہے آدھا، ٹھیک ہے، اور یہ خود جنوب یعنی کہ جنوب کی سمت میں واقع ہے، اور یہ خود شمال یعنی شمال کی سمت میں واقع ہے۔ اسی طرح سے نصف النہار جب زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو یہ شمال سے شروع ہوتا ہے اور جنوب پر ختم ہوتا ہے، شمال سے جنوب تک چلتا ہے۔ شمالی نصف کرہ خط استوا اور قطب شمالی کے مابین واقع ہے۔ جنوبی نصف کرہ خط استوا اور قطب جنوبی کے مابین واقع ہے۔ جی اب ہم پڑھتے ہیں تفصیل، دیکھتے ہیں ان خطوط کی تفصیل۔ سب سے پہلے عرض، زمین کو عرض میں یعنی چوڑائی میں جو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو جو لکیر یا خط زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے اسے خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال کی جانب خود شمالی ہے، خط استوا سے جنوب کی جانب خود جنوبی ہے، اور
नंबर 2 है मशरिक से मगरिब तक, ये खतूत खींचे गए हैं खत इस्तवा के इर्द गिर्द मशरिक से मगरिब तक। इसके बाद ये खतूत एक दूसरे के मतवासी होते हैं, मतवासी होता है कि एक दूसरे के आमने सामने हैं बिल्कुल, और इन सब खतूत के दरमियान फासला बिल्कुल एक जैसा है, और ये खतूत किसी भी मकाम पर किसी भी जगह पर दूसरे खत से टच नहीं करते, दूसरे खत को छूते नहीं है या मिलते नहीं है किसी मकाम पर। इसी तरह से अर्ज बल के खतूत खत इस्तवा के कुछ शमाल की जानिब 90 डिग्री के मौजूद हैं और कुछ जगहों के जानिब 90 डिग्री के मौजूद हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये खतूत हो गए 180 डिग्री के। अब ये खतूत तूल बल, जमीन को अर्ज बल में तकसीम करने के साथ साथ जमीन को तूल बल में, तूल यानी लंबाई में भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो खत जमीन को लंबाई में दो हिस्सों में तकसीम करता है उसे निस्फुन निहार कहते हैं। निस्फुन निहार 0 डिग्री पर मौजूद है। खतूत तूल बल कुछ शमाली से कुछ जनूबी पर वाक़या है 0 डिग्री पर। ये कुछ शमाली से शुरू होते हैं और कुछ जनूबी पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। कुछ शमाली पर भी एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ जनूबी पर भी एक दूसरे से मिलते हैं। इस सम्त में मशरिक वाक़या है, इस सम्त में मगरिब वाक़या है। निस्फ़ निहार के मशरिक की जानिब ये खतूत है और निस्फ़ निहार के मगरिब की जानिब ये खतूत वाक़या है। इनकी ख़ुसूसियात है, ये भी खतूत अर्ज बल की तरह खतूत तूल बल भी फर्जी खतूत है। फिर ये निस्फ़ निहार से शमाल, निस्फ़ निहार पर शमाल से जुनूब पर वाक़या है, शमाल से जुनूब तक निस्फ़ निहार के साथ साथ चलते हैं। अब ये खतूत गैर मतवाज़ी हैं। गैर मतवाज़ी मतलब इन खतूत के दरमियान भी फासला एक जैसा ही है, लेकिन जब ये खतूत एक दूसरे से कुछ शुमाली पर और कुछ जनूबी पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये मतवाज़ी नहीं रहते, बल्कि ये गैर मतवाज़ी हो जाते हैं। इसी तरह से निस्फ़ निहार के मशरिक की जानिब 180 डिग्री के खतूत वाक़या हैं। निस्फ़ निहार के मगरिब की जानिब ये तूल बल के खतूत 180 डिग्री के वाक़या हैं। कुल मिलाकर ये खतूत दोनों जानिब के 360 डिग्री के होते हैं। खत इस्तवा ज़मीन को शमाली और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करता है और निस्फ़ निहार ज़मीन को मशरिक और मगरबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करता है। इसके साथ ही हमारा अगला उन्वान है तूल बल और टाइम जोन। हमने पढ़ा था तूल बल और टाइम जोन। खतूत तूल बल जो होते हैं वो टाइम जोन में किस तरह से मददगार साबित होते हैं। तूल बल दुनिया को 24 टाइम जोन्स में तकसीम करता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 टाइम जोन्स में तकसीम करता है। हर घंटा तूल बल की 15 डिग्री के रकबे पर मुहीत होता है। तूल बल की 15 डिग्री पर हर घंटा, ये सारे खतूत के दरमियान 15 डिग्री का फासला होता है, तो जिससे हमें घंटे का पता चलता है कि 1 घंटा आगे है या 1 घंटा पीछे है। ऐसे ही जब हम निस्फ़ निहार से मगरिब की तरफ सफ़र करते हैं, ये देखिए ये पूरी ज़मीन है और ये सेंटर वाली दरमियान वाला जो ख़त है ये है निस्फ़ निहार। निस्फ़ निहार बरतानिया में वाक़या ग्रीनविच मकाम है बरतानिया में, उस पर निस्फ़ निहार सफ़र करती है। ये वाला ख़त सफ़र करता है, ये निस्फ़ निहार का ख़त है। अब निस्फ़ निहार के ख़त से जब हम मशरिक की तरफ सफ़र करते हैं, निस्फ़ निहार से ये है मशरिक की तरफ सफ़र करते हैं, तो हर 15 डिग्री के साथ 1 घंटा बढ़ जाता है। इसको गौर से देखिए आपको यहाँ पे दुनिया का नक्शा भी नज़र आएगा
तो हर 15 डिग्री के साथ नक्शे में मौजूद जो इलाके या जो ममालिक या हमारे बर आज़म वाक़या हैं, वो हर 15 डिग्री के साथ बढ़ते जाएं, नेक्स्ट आगे 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 सफ़र करते जाएं, तो हर 15 डिग्री के साथ एक एक घंटा आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से जब हम निस्फ़ नहार से मगरिब की जानिब सफ़र करते हैं, तो हर 15 डिग्री के साथ एक घंटा पीछे आ जाता है, एक घंटा कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 घंटा है, यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 3, 4, 5। ये जो माइनस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है 1 घंटा कम हो जाता है। और ये जो प्लस का निशान लगा हुआ है, जमा का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कराची लंदन से 5 घंटे आगे है, जबकि न्यूयॉर्क लंदन से 4 घंटे पीछे है। हर खत पर मौजूद तमाम मकामात का दिन और रात एक ही वक्त पर होता है। अगर एक खत पर बहुत सारे 4-5 मकामात मौजूद हैं, तो उन सब का दिन और रात का एक ही वक्त होगा। इसी तरह इधर और इसी तरह इधर तमाम खतूत के ऊपर। तूल बल की 180 डिग्री का खत बहुत अहम है, ये क्योंकि ये आलमी ख़त तारीख है। जब इस ख़त को पार किया जाता है तो एक दिन के हिसाब से तारीख तब्दील हो जाती है। अगर मशरिक से मगरिब की तरफ सफ़र किया जाए, मशरिक से मगरिब की तरफ सफ़र किया जाए, तो तारीख एक दिन के हिसाब से बढ़ जाती है। एक एक घंटे को मिला के जब 12 घंटे लेके आते हैं, तो मशरिक से मगरिब की जानिब जब हम सफ़र करते हैं, तो तारीख एक दिन के हिसाब से बढ़ जाती है। और अगर मगरिब से मशरिक की जानिब सफ़र किया जाए, तो एक एक घंटे को 12 घंटे में ला के तारीख एक दिन के हिसाब से कम की जाती है या कम हो जाती है। अब हम चलते हैं मरूज़ी की तरफ। हमें कौन सा नक्शा इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें ये मालूम करना हो। मुख्तलिफ बयानात हैं नीचे हमारे पास। नंबर 1, किसी शहर की सड़क हमने तलाश करनी हो या देखनी हो, तो हम कौन सा नक्शा इस्तेमाल करेंगे? सड़कों का नक्शा। नंबर 2 है, पाकिस्तान के हमसाए ममालिक का नक्शा हमने देखना हो, तो हम पाकिस्तान का सियासी नक्शा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स हमने देखने हैं, तो हम पाकिस्तान का तबई नक्शा इस्तेमाल करेंगे। तबई नक्शा पाकिस्तान की ज़मीन का नक्शा। इसी तरह पाकिस्तान के चारों सूबों की आबादी हमने देखनी है, तो हम पाकिस्तान का सियासी नक्शा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, किसी मखसूस इलाके की आबो हवा हमने देखनी है या मालूम करनी है, तो हम मौसमी नक्शा देखेंगे। इसके बाद है, दिए गए जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, निस्फ़ नहार डैश की तरफ सफ़र करती है। अलिफ है, मशरिक से मगरिब की जानिब। बे, शमाल से जनूब की जानिब। जीम, जनूबी निस्फ़ कुर्रा। दाल, मगरबी निस्फ़ कुर्रा। इसका सही जवाब है बे, शमाल से जनूब की जानिब निस्फ़ नहार सफ़र करती है। नंबर 2, जनूबी निस्फ़ कुर्रा डैश के दरमियान मौजूद है। जनूबी निस्फ़ कुर्रा अलिफ, ख़त इस्तवा और शमाल कुत। बे, ख़त इस्तवा और जनूबी कुत। जीम, ख़त इस्तवा और निस्फ़ नहार। दाल, ख़त इस्तवा और आर्कटिक। इसका सही जवाब है ख़त इस्तवा और जनूबी कुत के दरमियान जनूबी निस्फ़ कुर्रा मौजूद है। नंबर 3, निस्फ़ नहार डैश पर वाक़या है। अलिफ 0 डिग्री तूल बल, 180 डिग्री अर्ज बल, 360 डिग्री अर्ज बल, 90 डिग्री तूल बल। इसका सही जवाब है 0 डिग्री तूल बल पर। आखिरी बयान है हमारे पास, निस्फ़ नहार एक डैश है। अलिफ निस्फ़ कुर्रा, बे कुत, जीम अर्ज बल का एक खत, दाल तूल बल का एक खत। निस्फ़ नहार एक डैश है, इसका सही जवाब है तूल बल का एक खत। इसके बाद नीचे आइए, नक्शे पर मकामात जैसे कि बहरों और बड़े आज़मों का आसानी से तयन करने के लिए असासी खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए नक्शे को देखें और असासी खतूत का इस्तेमाल करके इन सवालों के जवाब दें। ये नक्शा दिया गया है दुनिया का। दुनिया के नक्शे में इस तमाम हिस्से में ये जो हमारे पास एक चार्ट बना के दिया गया है और मुख्तलिफ खतूत खींचे गए हैं। इस तरफ हमारे पास गिनती है 1, 2, 3, 4 और इस तरफ अंग्रेज़ी ज़बान के
حروف ہیں ABCDEFG۔ تو اس دنیا کے نقشے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے چارٹ کے کون سے حصے میں کون سا بحر آتا ہے یا کون سا بر اعظم واقع ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ تلاش کرنا ہے۔ جیسے کہ نمبر 1 ہے B2 کے مربع میں کون سا بر اعظم موجود ہے۔ بی اوپر سے ہم دیکھیں گے بی، یہ ہے بی والا، یہ بی کا یہ چارٹ ہے، ٹیبل ہے، بی اور 2 یہ یہاں پہ یہ دیکھیں گے ہم کہ یہاں پہ کون سا بر اعظم واقع ہے۔ پھر E3 اگلا ہے، E3 اور F3 کے مربع میں کون سا بر اعظم موجود ہے۔ E3 E اور 3 یہ 3 E3 یہاں پہ کون سا بر اعظم موجود ہے اور ہے F3 F اور یہ 3۔ اس کے ساتھ ہی E3 میں اور F3 میں کون کون سا بر اعظم موجود ہے۔ اس کے بعد ہے E2 کے مربع میں کون سا بحر اعظم موجود ہے۔ E2 یہ 2 E2 یہ 2 کے مربع میں کون سا بحر اعظم، بر اعظم نہیں بحر اعظم، بر اعظم یہ ہیں، یہ جو خشکی کے حصے ہمیں بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نیلے رنگ کا یہ پانی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بحر ہے۔ تو ہم نے E2 میں بحر تلاش کرنا ہے کہ E2 میں کون سا بحر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے C2 اور C3 کے مربع میں کون سا بحر اعظم موجود ہے۔ C2 یہاں پہ کون سا بحر ہے، اور C اور 3 C2 اور C3 میں کون سا بحر موجود ہے۔ آپ نے دنیا کا نقشہ استعمال کرتے ہوئے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ پھر آپ تلاش کیجئے گا کہ نیلے رنگ میں کون سے بحر موجود ہیں جو کہ یہاں پہ پوچھے گئے ہیں، اور اس حصے میں یہ جو خشکی کے بڑے بڑے حصے ہیں یہاں پہ کون سے بر اعظم واقع ہیں جو کہ یہاں پہ پوچھے گئے ہیں۔ آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، اسی سوال کو آپ نے حل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو مروزی کے دوسرے سوالات پڑھے ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باب نمبر 5 کا جائزہ تیار کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔